Good morning, students. Yes, we are discussing chapter 11, Biotechnology, Principles and Processes. Today we will discuss next topic of this chapter, Process of Recombinant DNA Technology. Okay, so recombinant DNA technology involves various steps in specific sequence. These steps are, first is isolation of DNA. That means DNA genetic material is isolated from the cell. First, DNA genetic material is isolated from the cell. Then, second step is fragmentation of DNA by restriction enzyme. Fragmentation, that means cutting of DNA at a specific location by the help of restriction endonuclease enzyme. Okay, this isolated DNA cut with the help of restriction endonuclease enzyme in different fragments, and in this way we get different fragments of DNA. Third step is isolation of desired DNA fragment. Okay, the desired DNA fragment is isolated from the फ्रेगमेंटेड डीएनए. जो हमने डीएनए को डिफरेंट पार्ट्स में कट कर लिया, फिर उसमें से जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. वी सेपरेट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम दिस फ्रेगमेंटेड डीएनए. आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग पीसीआर. After that, we make multiple copies of desired DNA fragment using PCR technique. Okay. Then, next step is ligation of the DNA fragment into a vector. After that, this desired DNA fragment is joined to the vector. Is ligated to the vector with the help of enzyme ligase. Next is transferring the recombinant DNA into the host. When we join this desired DNA fragment into the vector, in this way we get recombinant DNA. Recombinant DNA is formed. Okay. After that, this recombinant DNA transfer into the host. Next step is culturing the host cell in a medium at large scale. After that, host cell is cultured in a medium at large scale. After that, next step is extraction of the desired product. We separate desired product. Okay, हमने मतलब होस्ट सेल को लार्ज स्केल के ऊपर कल्चर कर लिया. ठीक है, उसके बाद उसमें से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है हम उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. So these are the steps that are involved in the process of recombinant DNA technology. So now we discuss these steps one by one in detail. First step is isolation of DNA. Okay, genetic material is isolated from cell by using enzymes such as lysozyme, cellulase, chitinase. Okay, if we separate genetic material from bacterial cell, that time we use lysozyme enzyme. If we separate genetic material DNA from plant cell, we use cellulase enzyme. We separate genetic material from animal cell by chitinase enzyme. So in this way, by using enzymes, we isolate genetic material from cell. Okay, the plant cell, bacterial cell, animal cell is broken down by these enzymes. Okay, is broken down by these enzymes to release DNA along with other macromolecules. Okay, जैसे हमने मतलब किसी सेल में से क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है, तो हम उसके क्या है, इन एंजाइम्स का यूज करते हैं, और इन एंजाइम्स की हेल्प से वो सेल क्या हो जाती है, ब्रेक होती है, और उसके अंदर से जो डीएनए होते हैं वो रिलीज होते हैं. उसके साथ में बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी क्या है, रिलीज होते हैं. Other macromolecules like RNA, protein, polysaccharides and lipid. Okay, so macromolecules also separated along with DNA. Okay, DNA that separated out can be removed from macromolecules by spooling or rolling. तो ये जो macromolecules हैं, we remove these macromolecules from this separated out DNA. Protein, the DNA is individual with protein, so protein like histone protein. Okay, DNA histone protein का बना होता है.
So these proteins can be removed by treatment with proteases enzyme. RNA can be removed by treatment with ribonuclease enzyme. So मतलब ये इन एंजाइम्स की हेल्प से हम इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, प्रोटीन को, आरएनए को सेपरेट करते हैं, और अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अदर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. So in this way, after several treatment, we get purified DNA. The purified DNA is precipitated by adding chain ethanol. फिर जब हम इनको मतलब प्रोटीज एंजाइम से, राइबोन्यूक्लियस और दूसरे ट्रीटमेंट के साथ हम इसमें से मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं, फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, चेन इथेनॉल ऐड करते हैं. वी ऐड चेन इथेनॉल. आफ्टर दैट वी गेट प्यूरिफाइड डीएनए. In this way, we isolate DNA from cell. Okay. Next step is cutting of DNA at specific location. Okay. The cutting of DNA at specific location is performed by restriction enzyme, by using restriction enzyme, restriction endonuclease. Okay. मतलब ये जो हमारा purified DNA है, हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं with the help of restriction enzyme. This purified DNA with restriction enzyme incubate at optimal conditions. Optimal conditions like high temperature, low humidity, जो भी मतलब उसके लिए suitable है. उस ये जो हमारे purified DNA है, इसको fragments के अंदर divide करने के लिए to form fragmented DNA, we incubate purified DNA with restriction enzyme at optimal conditions to form fragmented DNA. In this way, we get different fragments of DNA like this. In this way, we get different fragments of DNA. ये जो मतलब ये हमारा purified DNA है, restriction enzyme इसको क्या करेगा, बीच बीच में से कट कर देगा. So in this way, we get different fragments of DNA. Okay. So next step is isolation of desired DNA fragment. Yes. Isolation of desired DNA fragment. Okay, isolation of desired DNA fragment is performed by using agarose gel electrophoresis. Okay, with the help of agarose gel electrophoresis, we isolate desired DNA fragment. Desired DNA fragment, we can see that gene of interest. This is also known as gene of interest. ठीक है. भी हमने अब उस डीएनए को जो हमने सेपरेट किया था उसको डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लिया. अब उस फ्रैगमेंट में से हम उस फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे जो हमें चाहिए, जिस जीन का हमें टेस्ट करना है, उस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को हम उसमें से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे बाय यूजिंग agarose gel electrophoresis. DNA is a negatively charged molecule. Yes, DNA is a negatively charged molecule. Move towards the positive electrode, positively charged electrode anode. ठीक है. हमने एक agarose gel electrophoresis में पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक क्या होती है, मतलब जो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है एनोड, उसकी तरफ क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल जो है मूव होते हैं. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड आउट. ओके. इसके अंदर फिर क्या होता है, द लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव क्लोजर टू द एनोड, वेयर एज द स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर फार अवे फ्रॉम द एनोड. लार्ज साइज के तो एनोड के पास हो जाएंगे और जो स्मॉल साइज के वो क्या हो जाएंगे, एनोड से दूर होंगे. सो इन दिस वे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड आउट बेस्ड ऑन देयर साइज. Okay, the cutout gene of interest from the source DNA is removed. After that, अब ये जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अरेंज हो गया. अब इसमें से हमें जो भी हमें जीन चाहिए हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. सपोज हमें ये जीन चाहिए तो हम इसको यहां से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे. ओके. सो इन दिस वे वी आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट. अब ये जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, अब हमने इसकी टेस्ट करनी है. हमने इसका टेस्ट किया और वो फेल हो गया, तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है वो तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, लॉस्ट हो गया. हमें वो दोबारा वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा. सो टू अवॉइड दिस कंडीशन, वी मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ
this gene of interest. So next step is amplification of gene of interest using PCR. ओके भी हम अगर हमारे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से हमने ये जो लिया है इसका हमने टेस्ट किया और वो फेल हो गया, वो टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, तो हमारी जो डिजायर्ड हम उसको दोबारा मतलब टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हमारे दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर टेक्निक। Amplification of specific DNA sequence is carried out in vitro using PCR technique. In vitro means in lab. अब तक का देखो जितना भी प्रोसेस हमने किया उसको आइसोलेट करना ये सब उस सेल के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर था। ओके अब जो एम्प्लीफिकेशन है उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट का वो हम क्या करेंगे, लैब के अंदर करेंगे। इन विट्रो मीन्स इन लैब, ओके, बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक। In this technique, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro using two sets of primers and the DNA polymerase enzyme. ठीक है, हम जो हमारे जो desired DNA fragment है, we make multiple copies of this. We synthesize a multiple copy of the gene of interest by using two sets of primer and the DNA polymerase enzyme. ठीक है, primer is the chemically synthesized nucleotide sequence, okay, that are complementary to the region of DNA. ठीक है, प्राइमर हम ऐसा मतलब ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस ही है, एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसके अंदर जो क्या है, जो हमारा जो डीएनए रीजन है उसके वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऑपोजिट होता है। ओके जैसे हमारे डीएनए क्या है 5' to 3' है, तो ये जो हम प्राइमर लेंगे वो क्या हो जाएगा 3' to 5', कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे डीएनए रीजन की। और इसके अंदर हमें क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। सो द टेक्निक ऑफ पीसीआर, मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम कीप रिवाइज दिस टॉपिक। ओके तो हमने इसके अंदर वेरियस स्टेप्स देखे आज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे जो डीएनए है हम उसको आइसोलेट करते हैं सेल में से, फिर उसको हम डिफरेंट पीसेस के अंदर कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आफ्टर दैट उस फ्रेगमेंटेड डीएनए में से हम अपना डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रोसा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे डीएनए हमारे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है एनोड उसकी तरफ मूव करेगा। लार्जर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, एनोड के पास मूव हो जाएंगे, और जो स्मॉलर साइज के वो इससे क्या होंगे, दूर होंगे, फार अवे होंगे। ओके तो इस तरह से हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या है, उनकी साइज के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब उसके अंदर से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन टेस्टिंग अगर हमारी फेल हो जाए तो हमारा वो डिजायर्ड जीन भी गया, ठीक है, तो हमें वापस सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम उसकी क्या है, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन मीन्स क्या है, मल्टीपल कॉपीज, synthesis of multiple copies of gene of interest, okay, with the help of PCR technique. By using PCR technique, we make multiple copies of gene of interest. Okay, ये कहाँ होगा, इन विट्रो, दैट मीन्स लैब के अंदर हम एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। लैब के अंदर इसके पहले का सारा प्रोसेस क्या होता था, ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर होता है। अब इसका जो एम्प्लीफिकेशन है वो लैब में करवाया जाता है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल के लैब के अंदर उसका एम्प्लीफिकेशन करवाया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 सेट्स ऑफ, मतलब पीसीआर टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज करेंगे और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। प्राइमर क्या है, इट इज अ केमिकली स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो क्या है, जो हमारे डीएनए रीजन है, ये सपोज ये हमारा जो हमने ये जो डीएनए सेपरेट किया है वो डीएनए पीस है, जो हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है। तो ये जो हम प्राइमर लेंगे वो क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऑपोजिट होगा। ओके 3'
अगर हमारे डीएनए रीजन क्या है 5' to 3' है, तो ये जो प्राइमर होगा वो क्या होगा 3' to 5'। और ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, अब ये पीसीआर टेक्निक होती है क्या है, इसकी पूरी मैकेनिज्म, कैसे प्राइमर होता है, कैसे डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है और किस तरह से उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand this topic. So watch video carefully. Read chapter from book also. Thank you students.